اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے نا، اتنا ظلم ہوا ہے کہ ایک منٹ بھی ہمارے ذہن سے اس کا خیال نہیں جا رہا۔ ہمیں انصاف چاہیے، جیسے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے ایسے ہی ان لوگوں کو بھی کیا جائے۔ نہ تو کسی جانور کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، اس کی ٹانگوں میں کیل ٹھونکے، ہاتھوں کو پیروں کو مسل دیا گیا ہے، اس کے سر پہ اتنی زیادہ چوٹ اور پسلیوں کو بھی توڑ ڈالا گیا۔ وہ ہمارے اگر سابقہ انسپیکٹر تھے، وہ ڈسمس شدہ ہیں پولیس سے، لیکن وہ کوئی بھی ہو، وہ پولیس حاضر سروس والا پولیس والا ہو یا کوئی عام آدمی ہو، قانون کے لیے قانون سب کے لیے برابر ہے۔ جو ہماری سی ایم صاحب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہے، وہ منارٹیز کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جو بھی کوئی مذہبی اقلیتوں کو تنگ کرے گا، میں ان کو آئینی ہاتھوں سے نپٹوں گی۔ ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਰਫਾਨ SHO ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਭਤਰੀਆ ਜਾਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਛਿਆ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਏ। مسیح میں آپ کی سلامتی ہو، میں ہوں سنیل اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں کراس وے ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈسکا کے ایک نواحی گاؤں جام کے چیمہ میں، جہاں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ایک مسیحی نوجوان کاشف مسیح کو مبینہ طور پر بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا ہے۔ کاشف کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات موجود ہیں، جو آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ورثہ کا کہنا ہے کہ کاشف کو ایک بااثر مقامی شخص کے کہنے پر تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ واقعہ کا مقدمہ قتل اور ہنگامہ آرائی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا، بلکہ پولیس نے مرکزی مجرم کو بھی گرفتار کر لیا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا واقعہ نہیں، بلکہ رواں سال کے شروع سے اب تک یہ تیسرا واقعہ ہے۔ شیخو پورہ میں وقاص مسیح پر جان لیوا حملہ کیا گیا، جو ابھی تک زیر علاج ہے۔ اسی شہر میں ایک اور مسیحی نوجوان آصف مسیح کو بھی تشدد کر کے قتل کر دیا گیا۔ رواں ماہ کے آغاز میں فیصل آباد میں 16 سالہ مسیحی نوجوان گلفام مسیح کو معمولی جھگڑے پر قتل کر دیا گیا۔ ان واقعات سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کی زندگی کس قدر غیر محفوظ ہو چکی ہے اور انصاف کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ آج 14 مئی کو کاشف کی میموریل سروس تھی، جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہے۔ مسیحی رکن صوبائی اسمبلی اتر جولیس، پولیس افسران اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی شرکت کی۔ تمام لوگ اس وقت سے رنجیدہ ہیں اور فوری انصاف کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، مزید تفصیلات کے لیے ہم کاشف مسیح کے اہل خانہ سے بات چیت کرتے ہیں۔ ہمارا بھائی ان کی مزدوری کرتا تھا، 1500 کی مزدوری کرتا تھا، پہلے بھی ان کے ساتھ مزدوری کرتا تھا، ٹھیک ہے۔ اب اتوار والا دن جو مدر ڈے کا دن تھا، رات کو 10-11 بجے تک ہمارے ساتھ رہا۔ ہم اپنی والدہ کے لیے کیک لے کے آئے، ہم نے سیلیبریٹ کیا سب نے۔ اس کے بعد 2 بجے ان لوگوں نے آ کے ہمارا دروازہ کھڑکایا۔ ہمارے 2-3 گھر، ایک ادھر کا دروازہ کھڑکایا اور ادھر کا دروازہ کھڑکایا، کھڑکا کے کہا کہ ہمیں تلاشی لینی ہے کہ تمہارے بچے نے ہمارا موبائل چوری کیا ہے، ہمارا موبائل گم ہوا ہے۔ چلو میں اس وقت ادھر نہیں تھا، میرے بڑے بھائیوں نے ادھر کی تلاشی دی، ادھر موبائل نہیں تھا۔ اس وقت بچہ ہمارا ان کے پاس تھا، بچے کے ساتھ تشدد کر رہے تھے۔ جب ہمیں صبح پتہ لگا 5 بجے اس روڈ پر پھینکتے گئے، اس کی ایسی حالت تھی دیکھنے مناسب بھی نہیں تھی۔ اتنا ظلم کیا، سریے گرم کر اس کے بازو پہ لگائے، اس کے بازو پہ لگائے، اس کے لتوں پہ لگائے، اس کے سر میں 10 کلو کا تھوڑا، 10 کلو کا وزن کا تھوڑا جو اس کے سر کے
इस्तेमाल किया गया, किले लगाए गए उसके ऊपर, ਕਿਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਜ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਆਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਂਸਾਂ ਹੈ ਸਨ। ਅਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਜਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਉੱਥੇ ਮਲਕ ਰਫਾਨ SHO, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦਾ ਭਤਰੀਆ ਜਾਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਛਿਆ ਲੱਭੀ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਮ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉੱਥੇ। तो मेरी गुजारिश है ये, मरियम नवाज से मेरी अपील है, IG पंजाब से मेरी अपील है, DPO साहब से मेरी अपील है कि मेहरबानी करें। ये वाक़या आपने सब ने देख लिया होगा, मेहरबानी है हमें इंसाफ दे। मेरा नाम शफाकत मसीह है। तो रात ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 2:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰੀ ਹਵੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਆ ਕੇ ਫੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੀ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਫਾਂਡਾ ਕੱਢਨੇ ਆ ਤੇ ਘੁੰਮਤ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ DPO AC ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। तकरीबन 5 बजे का टाइम है, बच्चे जामिया में जा रहे थे। उन्होंने जामिया में जाके बताया कि वहाँ पे एक लड़का पड़ा है, शायद वो मर गया है, कोई पता नहीं है। वो आए तो हमारे मोहल्ले में मोहल्लेदार हैं वो भी, उन्होंने आके हमें बोला है तो हमने जल्दी जल्दी दरवाज़ा खोला है। खोल के दरवाज़ा देखा है तो हमारा भाई वहाँ पे मर चुका था। थोड़ी सी सांसें चल रही थी, तो वो खत्म हो चुका था। सांसें चल रही थी। भाई के साथ उन्होंने थोड़ी सी बात की है, उन्होंने बताया है। तो उसके बाद भाई को एक घूंट पानी दिया है, भाई की सांस ख़त्म हो गई थी। तो हमारी मरियम नवाज से अपील है कि वो हमें इंसाफ दिलाएं, हमें इंसाफ दिलाए, हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ जैसे चाहिए। हमारे भाई को उन्होंने ऐसे बेदर्द से मारा है ना, हम लोगों को इंसाफ चाहिए। हमें इंसाफ चाहिए। हम इतने दुखी हैं, हमारे साथ दो हमारी बस्तियां भी साथ हैं, हमारी आवाज़ को किसी ने नहीं सुना। जब हम बाहर गए हैं तो फिर लोगों ने हमारी आवाज़ को सुना है। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे हमारे भाई को कत्ल किया है ऐसे ही उन लोगों को भी किया जाए। वाकया पता नहीं कहा पहला आए ने तो फिर उन्हें आके दसिया तो पता नहीं हुण रात का ही लै गए, रात का ही लै गए। वो तो सवेरे हो रहे कादे वास्ते दसन आए, रात का ही लै गए। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਚੌਂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕੱਖ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਦੀ ਕੱਚੀ ਵੀ ਲਾਹੜੀ ਸਨ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਨੰਗ ਪਨੰਗਾ ਉਹਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। सबसे मेरी यही इल्तिजा दरख्वास्त है कि हमारे चाचू को इंसाफ मिले। आप जिससे मर्जी जाके पूछ लें, वो इतना अच्छा था ना कि जिससे भी पूछेंगे ना उसकी तारीफ़ ही सुनेंगे। उसके साथ इतना जुल्म हुआ है ना, इतना जुल्म हुआ है कि एक मिनट भी हमारे जहन से उसका ख्याल नहीं जा रहा। जो भी इधर आए ना सारे रो के उसको दे के गए हैं। मेरी बस मरियम नवाज से इल्तिजा दरख्वास्त है कि हमारी सुनी जाए, हमारी आवाज़ को दबाया ना जाए। मैं फ़ादर अजीम जान और मेरा ताल्लुक़ जो है वो सेंट मेरीज़ पैरिश जाम के चीमा से है। और हमारे जामका के एक इलाके में एक बहुत बड़ा सानिया हुआ कि हमारे भाई काशिफ मसीह को जो है वो दर्दनाक मौत दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी मसीही कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा सानिया है। तो मैं आज हुकूमत पाकिस्तान से, CM से और ह्यूमन राइट्स के अदारों से अपील करना चाहता हूँ कि ये जो दर्दनाक वाक़या रूनुमा हुआ जामके में, इसको जो है वो इसको आप सब के सामने पेश करता हूँ ताकि हमारे भाई के लिए, हमारे ख़ानदान के लिए इंसाफ मुहैया किया जा सके। बड़े ही दुख और कर्ब की बात है कि सियालकोट के नवाही गांव मोहतरा में एक हमारे मसीह ख़ानदान के बेटे को एक इंस्पेक्टर पुलिस ने और चंद गुंडों ने मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और वो अब्दी नींद
सो गया है। और मैं समझता हूँ ये दरिंदगी की और सफाकियत की बदतरीन मिसाल है। जो हमारे डीएसपी साहब हैं, उन्होंने बर वक्त जो है एफआईआर उस गुंडे के ख़िलाफ़, पुलिस इंस्पेक्टर के ख़िलाफ़ और दूसरे दरिंदों के ख़िलाफ़ एफआईआर लॉन्च की है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी सीएम साहब मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा है, वो मिनॉरिटीज़ के बारे में बड़ा कंसर्न्ड है। वो कहती है कि जो भी कोई मजहबी अक़लियतों को तंग करेगा, मैं उनको आइनी हाथों से निपटूंगी। और ये जो सारा केस है हम उनको भी बताएंगे, और इसमें किसी किस्म की डीएसपी साहब इधर खड़े कोताही नहीं होनी चाहिए। सारे एमपीएस, बाबा फैलबू साहब और जितने दूसरे हमारे एमपीएस हैं, हम सब आपके साथ खड़े हैं। हम किसी किस्म की आपके साथ ज़्यादती नहीं होने देंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है जिसमें काशिफ साहब जो है उनका कत्ल हुआ है, और इन सफाकियत से ये जो कत्ल हुआ है, इस पे पुलिस की जब हमें इतला मिली है, बरकत एसएचओ ने रिस्पॉन्ड किया है, हम मौके पे आए हैं। उसका जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उसको फौरी तौर पे मुकम्मल किया है और उसकी मुकदमा दर्ज किया है उनके ख़िलाफ़। इर्रिस्पेक्टिव कोई जितना भी है, वो हमारे अगर साबका इंस्पेक्टर थे वो डिसमिस शुदा हैं पुलिस से, लेकिन वो कोई भी हो, वो पुलिस हाज़िर सर्विस वाला पुलिस वाला हो या कोई आम आदमी हो, कानून के लिए, कानून सब के लिए बराबर। इन्होंने गरीबों ने बड़ा जुल्म होया, इंतहा तो ज़्यादा जुल्म होया है। और ये सारा खानदान बहुत ही शरीफ है। ये बेचारे ना किसी कभी किसी झगड़े ने, ना कोई ना किसी लड़ाई हैगी है। भोले जे आदमी ने, मतलब शरीफ जे लोग ने वो लोग जोड़े ने बड़े दरिंदे ने। ये गरीब का कत्ल नहीं होया, ये एक इंसानियत का कत्ल होया। ठीक है, कोई कहे कि मतलब फलानी कौम है या फलानी मतलब मसीह बिरादरी है या कोई सिख कम्युनिटी कोई मुसलमान है, ये बात नहीं है। ये सिर्फ इंसानियत का कत्ल है। असी अपील करांगे कि जो भी सुनता है ऐसे इंसान दरिंदे नूं ऐसी खौफनाक सज़ा मिलनी चाहिए ताकि दुनिया वेख के इबरत निशान मतलब बन जाए दुनिया सामने। मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी एक साथ हैं, हम इनका भरपूर इनके साथ तावन भी कर रहे हैं, सपोर्ट भी कर रहे हैं। इनके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, बड़ा जुल्म हुआ है, और जो जुल्म में सर चढ़ कर बोला है, और उन्होंने अपने नशे में सारा कुछ किया है, ताकत के नशे में, दौलत के नशे में। और ये उनका वर्कर था, उनकी ताबेदारी करता था। उन्होंने इसको हवेली में बुला के सर से पाँव तक शिद्दत की है। मलक इरफान ने, उसके बेटे ने, उसके भतीजे ने। ये इंसानियत के मुंह पे तमाचा है। मेरी अफसरान बाला से, अपने सियासतदानों से, अपने हुक्मरानों से अपील है कि इन मुलज़मों को करार वाकई सज़ा दी जाए और उनको कैफर करदार तक पहुँचाया जाए। इतना तो किसी जानवर के साथ भी नहीं किया जाता। उसकी टांगों में कील ठोके, हाथों को, पैरों को मसल दिया गया है, उसके सर पे इतनी ज़्यादा चोट और पसलियों को भी तोड़ डाला गया। इनके अगर आम औरत या आम बंदा देखे तो वो भी बेहोश हो जाए। इतना जुल्म, इतना तशद्दुद किया गया उस पर। तो मैं तो हुकूमत पंजाब से बल्कि पाकिस्तान से यही कहूँगा कि जिन्होंने ये किया है उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। नाज़रीन, मैं इस वक्त उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे उन ज़ालिमों ने आके तलाशी के बहाने में घर में एंट्री की। मेरे साथ काशिफ के बड़ा भाई और छोटा भाई मौजूद है, और उनसे मैं पूछता हूँ कि जब वो यहाँ पे आए और किस तरह उन्होंने आके दावा बोल दिया और इनके भाई को ले के चले गए। मुझे बताइएगा, जब वो आए और उन्होंने क्या कहा कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं? उन्होंने कहा था कि फ़ोन पर हमारी बात की हमारे भाई से, तो यहाँ तलाशी दे, यहाँ तलाशी दे। फिर वो जरा ना इस जगह से चले गए तलाशी के बाद, फ़ोन थोड़े अरसे बाद। अच्छा, आप बताएं कि वो तलाशी आप मौजूद थे घर में? नहीं, मैं ये भाई हमें घर बुलाने के लिए उधर गए थे। मैं उस साइड पे सोता हूँ। हमारा मेन घर उधर है। अच्छा जी। तो मैं चौक पे खड़ा हूँ। मैं समझा शायद वो पहला भी उस जगह काम करता था। मैं उनसे पूछा, मैं भाई कोई मसला है, बता दें। वो कह रहा नहीं, आप जाके सोएं, सुबह आ जाएगा। मैं पीछे चौक तक गया हूँ, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। सुबह मैं आया हूँ। सुबह हमारे गांव का एक अंकल है, वो अजान देने के लिए जाता है, वो हमारे घर पे आए हैं। हम मामा ने दरवाज़ा खोला, वो कहता है आपका भाई उधर पड़ा है। हमने आके देखा, वो
आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था। बड़े भाई ने उनसे पूछा है, उन्होंने 3 बंदों का नाम बताया, फिर पानी पिलाया उसे, वो डेथ हो गया भाई की। नाज़रीन, आपने काशिफ मसीह के भाई बहन, मकामी सियासतदानों और चर्च लीडर्स की बयानात सुने, जो सब शदीद गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं और फौरी इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन माजी के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए सवाल ये है कि क्या काशिफ मसीह को इंसाफ मिल पाएगा? खुदा करे कि इस बार इंसाफ हो। हम इस केस पर नज़र रखे हुए हैं और आपको मज़ीद पेशरफ्त से आगाह करते रहेंगे।